خاص اس خبر کے ساتھ کہ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ایک جماعت کا وتیرہ بن چکا ہے اور ہتک عزت کے قانون کی اشد ضرورت ہے۔ صوبائی اطلاعات کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہتک عزت کا الزام ثابت ہوتا ہے تو 3 ملین کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈالر کمانے کے لیے خواتین کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا اور اس کے اوپر یا ڈالر کمانا اور یا اس کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ مرحومین کو چھوڑنا، نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑنا اور الزامات لگا کر لہکتے چہکتے ہنستے مسکراتے الزام لگائے اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہ شخص اور اس کی فیملی جو ہے وہ کس عذاب کا شکار ہوتی ہے یہ صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جس فورم کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس بھی میڈیم کے اوپر وہاں پر یہ ٹویٹ کی گئی ہوگی، فیس بک پوسٹ کی گئی ہوگی، کوئی ولاگ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے یہ نوٹس ان کو اس میڈیم کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا اور یہ ایک ہی پیشی کے اندر ہوگا۔ جس شخص کے اوپر الزام لگے گا اس کو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس 21 دن کی مہلت ہے، 21 دن کے اندر اپنی مرضی کی 3 تاریخیں لے لیں۔ آپ خود تاریخ دیں، یہ پہلی دفعہ ہوگا کسی قانون کے اندر، جج تاریخ نہیں دے گا، جج کہے گا جی آپ تاریخ دے دیں۔ آپ 21 دنوں کے اندر 3 پیشیاں ہونی ہیں، ان 3 پیشیوں کی تاریخیں آپ بتا دیں اور وہ جو ہے وہ تاریخیں ہمیں جو ہے وہ وکیل صاحب جو ہے بتا دیں گے اور اگر وکیل صاحب نہیں بتاتے یا وہ شخص خود جو ہے اگر وہ نہیں بتاتا پھر جج صاحب جو ہے وہ 21 دنوں کے اندر کی 3 تاریخیں اسی جو ہے وہ نوٹس کے بعد وہ 3 تاریخیں ان کو دے دیں گے کہ یہ آپ کی تاریخیں ہیں، اس کے اوپر آپ نے تشریف لا کر جو ہے وہ آپ نے اپنا جواب جمع۔ تو خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے کیا نائب وزیر اعظم کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے؟ کوئی ایک ادارہ بھی پاکستان کا ٹھیک نہیں۔ وکیل وفاقی حکومت نے بتایا کہ انہیں وزیر خارجہ کی ہی تنخواہ مل رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کب تک سنایا جائے گا؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے اسحاق ڈار کے بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وکیل کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کو ایسی کسی تقرری کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی آئین میں اس تقرری کا ذکر ہے اور اسی لیے اس تقرری کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست پر اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ وزیر اعظم کسی کو بھی تعینات کر سکتے ہیں اور ان کے پاس تقرری کا پورا اختیار ہے اور اس حوالے سے رولز آف بزنس میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم تنخواہ نہیں لے رہے بلکہ وہ اس حوالے سے بطور وزیر خارجہ اپنے تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ ہم نے تمام خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہے، پورے ملک میں آوے کا آوا بگڑ چکا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ اس حوالے سے عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسحاق ڈار کے بطور نائب وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے کہ کیا نائب وزیر اعظم کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے؟ کوئی ایک ادارہ بھی پاکستان کا ٹھیک نہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ مانسون سے قبل ہی ڈیپٹی کمشنر لاہور رافی حیدر نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہر کی بوسیدہ خطرناک عمارتوں شاہراہوں پر بل بورڈز کا میکینیکل سروے کرنے کی ہدایت ہے، جبکہ ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی پی ایچ اے سمیت دیگر کو مراستہ جاری کر دیا ہے۔ اربن ایریا اور اندرون شہر میں خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی کرنے کا بھی حکم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ
DC लाहौर राफिया हैदर की जानिब से मानसून को मद्देनजर रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर की बासीदा खतरनाक इमारतों शाहराहों पर बिलबोर्ड्स का मैकेनिकल सर्वे करने की हिदायत है और DGLDA जबकि DPHA समेत दीगर को मुरासला भी जारी कर दिया है। अर्बन एरिया और अंदरून शहर में खस्ता हाल इमारतों की निशानदही का हुक्म है। मानसून से कबल ही डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। शहर की बासीदा खतरनाक इमारतों शाहराहों पर बिल बोर्ड्स का मैकेनिकल सर्वे करने की हिदायत है और इसी को मद्देनजर रखते हुए DGLDA और DPHA समेत दीगर को मरास्ता भी जारी कर दिया गया है। अर्बन एरिया और अंदरून शहर में खस्ता हाल इमारतों की निशानदही करने का हुक्म दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मानसून से कबल डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। शहर की बासीदा और ख़तरनाक इमारतों शाहराहों पर बिल बोर्ड्स का मैकेनिकल सर्वे करने की हिदायत है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, मरास्ता जारी कर दिया गया है? देखिए बिल्कुल, चूंकि मानसून से कबल डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने मानसून के पेश नज़र पुरानी वसीदा व खतरनाक इमारतों समेत जहाजी बिलबोर्ड के लिए DGLDA, DGPHA, CO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और CO कंटोनमेंट बोर्ड समेत सिविल डिफेंस ऑफिसर को भी जो है मुरासला जारी कर दिया है, जिसमें शहर में वसीदा व खतरनाक इमारतों का सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की गई है। मुरासला मतन के मुताबिक शहर के मेन शाहराहों पर जहाजी बिलबोर्ड का मैकेनिकल सर्वे करने की हदायत भी कर दी गई है। इसी तरह अर्बन एरियाज और अंदरून शहर में खासतौर पर खस्ता हाल इमारतों की निशानदही की जाए। इस वाले से तमाम तर जो सर्वे है इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुरतब करने की हदायत कर दी गई है। मानसून के पहले से कबल जो है ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स का असर नो जायजा लिया जाएगा और तमाम अफसरान के जो अलाइड महकमों के अफसरान हैं उनको भी बाकायदा तौर पर इजलास में बुलाया जाएगा। मगर उससे पहले जो है ये रिपोर्ट जो है जल्द अज जल्द मुरतब करने की हिदायत की गई है। इसमें तमाम तर जो महकमे हैं, जिसमें LDA है, PHA है, कॉर्पोरेशन है, कंटोनमेंट बोर्ड है, वो जल्द अज जल्द इसका सर्वे मुकम्मल करेंगे, जिसमें खस्ता हाल इमारतें हैं जिनको बाकायदा तौर पर देखा जाएगा और उनसे जो खस्ता हाल इमारतें अगर तो गिरने वाली इमारत होगी तो वहाँ के जो शहरी हैं, मकीन हैं, उनको उस इमारत को खतरनाक करार देकर उनको वहाँ से फौरी तौर पर जो है कहीं और किसी और इमारत में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उस इमारत की बहाली की जाए। बड़ा प्लान है जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मानसून से कबल ही जो है अलर्ट जारी किया है, जिसमें मानसून की आमद से कबल ही जो है इस तमाम सर्वे को मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें वसीदा व खतरनाक इमारतें हैं और बड़ी मेन शहरों पर जहाजी बिलबोर्ड नजर आते हैं जिनका मैकेनिकल सर्वे किया जाएगा। मैकेनिकल सर्वे में काफी ज्यादा खामियां होती हैं, जिसके लिए DGPHA जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि तमाम जो बिलबोर्ड हैं वो सेफ हैं और यहाँ सेफ नहीं है। इसके लिए तमाम तर जो है पहले खदुखाल जो है उनके लिए ये रास्ते जो है वो जारी किए गए हैं और इसी सिलसिले में तमाम शहर का जो है असर नो सर्वे करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से मुरासला जारी किया गया है, जिसमें DGLDA, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के CO कंटोनमेंट बोर्ड, DGPHA और सिविल डिफेंस को जो है इसके लिए तमाम सर्वे करने की हिदायत की गई है। इसमें बड़े बड़े शहरों पर जो प्लाजे हैं, खासतौर पर शालमी, हाल रोड, माल रोड, हफीज सेंटर, मेन बुलेवार्ड, तमाम जो जगह हैं, जो मेन बाजार है, वहाँ पे ये सर्वे होगा, जिसके बाद तमाम तर जो रिपोर्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम इमारतों को मद्देनजर रखते हुए सर्वे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। तो आपको बताएं कि गर्मी से मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर समिया ने नौजवान को फौरी तिबी इमदाद दी है। डॉक्टर समिया ने मसनूई तौर पर दिल को चलाने के लिए CPR दी, जबकि CPR के बाद नौजवान को होश आ गया। इसी पर बात करेंगे सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन खबर है कि डॉक्टर समिया जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में मसीहाई के हक अदा कर रही है, उन्होंने सड़क पे मौजूद जो है तड़पते हुए मरीज पर भी मसीहाई का हक अदा कर दिया है। अस्पताल ड्यूटी आते हुए एक मरीज को जो है वो चक्कर आया और वो मोटरसाइकिल से गुलाब देवी के अंडरपास के करीब गिर गया और मरीज का दिल बंद हो गया। तो लेडी डॉक्टर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोककर उसकी जो है वो मदद करना शुरू कर दी। पास से गुजरते डॉक्टर समिया ने फौरी मसनूई तौर पर दिल को चलाने के लिए जो है उस मरीज का CPR शुरू कर दिया। CPR करने के बाद नौजवान की दिल की धड़कन जो है वो शुरू हो गई और कीमती जान बचाने पर मौजूद शहरियों ने डॉक्टर समिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि डॉक्टर समिया को पूरी कौम जो है वो खराज तहसीन पेश करती है। जी
बहुत शुक्रिया आपका सज्जान। तो आपको बता रहे हैं कि हीट वेव की वजह से मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा। चिल्ड्रन अस्पताल की डॉक्टर समिया ने नौजवान को फौरी तिबी इमदाद दी है। डॉक्टर समिया ने मसनूई तौर पर दिल को चलाने के लिए CPR दी। मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूं है कि सूरज खुलकर आग बरसाने लगा है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। आज पारा 43 डिग्री को छूने का इम्कान है। कड़ाके की गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़वा दिए हैं। मौसम की सूरत हाल के बारे में मजीद बताएंगे सुहेल कैसर। बताइए सुहेल। देखिए, माह अप्रैल तो बहुत ठंडा ठार गुजरा और फिर जो रवां माह का पहला हफ्ता है वो भी बहुत अच्छा रहा कि उसमें देखें, माह अप्रैल तो काफ़ी ठंडा ठार गुजरा कि बारिशों के अच्छे सिलसिले देखने को मिलते रहे और फिर जो रवां माह का पहला हफ्ता है वो भी काफ़ी बेहतर गुजरा। लेकिन अब यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है और इजाफे का ये अमल काफ़ी तेज़ रफ्तार है कि आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। हाँ, अलबत्ता एक अच्छी बात यह है कि हल्की रफ्तार से हवा ज़रूर चल रही है, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत में हल्की सी कमी तो ज़रूर महसूस हो रही है। लेकिन अगर थोड़ी देर धूप में गुजारना पड़े तो फिर लग पता जाता है। आने वाले अय्याम के दौरान भी, आने वाले दिनों के दौरान भी मौसम की यही सूरत हाल रहने वाली है, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि कम से कम एक हफ़्ते तक तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा और ये सूरत हाल आने वाले दिनों के दौरान भी बरकरार रहेगी। इसी सूरत हाल के पेश नज़र तिबी माहिरीन की तरफ से शहरियों को मशवरा दिया गया है कि जब भी वो धूप में निकलें, घरों से बाहर निकलें तो सर को ढांप कर निकलें और खुसूसन जो गर्दन के गिर्द को कपड़ा ज़रूर लपेट लें, क्योंकि शदीद जो गर्मी की शिद्दत होती है वो ज़्यादातर गर्दन पर ज़्यादा असरअंदाज होती, तो उस पर भी ज़रूर कपड़ा लपेटें। और खुसूसन जो छोटे बच्चे हैं उनके हवाले से खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है, क्योंकि खुसूसी जो बच्चे हैं उन पर मौसम ज़्यादा शिद्दत के साथ असरअंदाज होता है। इसी तरह पानी के इस्तेमाल को बढ़ाने का भी मशवरा दिया गया है कि पानी का इस्तेमाल हमें गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम किसी हद तक गर्मी की जो शिद्दत है उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब आने वाले दिनों के दौरान गर्मी इसी तरह गर्मी का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और गर्मी की इसी तरह की शिद्दत महसूस होती रहेगी। सो ये सूरत हाल है जी आज लाहौर में मौसम की, और लाहौर के साथ साथ पंजाब के दीगर इलाकों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी सुहेल कैसे मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मतवक्की है। पेट्रोल 12 रुपये 84 पैसे और डीजल 8 रुपये 30 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरियों के लिए अच्छी खबर है और अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मतवक्की है। पेट्रोल 12 रुपये 84 पैसे और डीजल 8 रुपये 30 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है, जिससे महंगाई की शरह में भी कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मिलने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत में 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर अगर हुकूमत कमी कर देती है, उसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है 277 रुपए फी लीटर तक होने का इम्कान है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में $7.26 फी बैरल की कमी हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में कमी जो आलमी सतह पर हुई है $4.68 फी बैरल है। और माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी की जाती है तो महंगाई की शरह में भी कमी होगी। ताहम हतमी फैसला जो है वो वजीर आजम करेंगे और 16 मई से नई कीमतों का इतलाक होगा और
इस हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमतें हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुकामी सतह पर भी कीमतों में कमी हो सकती है और कमी के असरात जो हैं वो महंगाई पर भी आएंगे, क्योंकि महंगाई की शरह में भी कमी होगी। जी, महंगाई की शरह में भी कमी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और हुकूमती अहकामात भी नज़रअंदाज होने लगे हैं। 20 रुपये वाले नान की 25 से 30 रुपये में धड़ल्ले से फ़रोख्त जारी है। गवाल मंडी के इलाके में नान महंगे दामों फ़रोख्त किए जाने लगे हैं। शहरियों का हुकूमत से नान की मुकर्ररा कीमत पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का मुतालिबा है। अहवाल बताएंगे ज़ैन अली जी। ज़ैन जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से शहरियों को सहूलत फ़राहम करने के लिए रोटी जो है उसकी कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि नान की जो कीमत है वो 20 रुपये मुकर्रर की गई थी। लेकिन ग्वाल मंडी के इलाके बेशतर नान तंदूर पे जो है वो नान जो है वो 25 रुपये का, जबकि कुलचे वाला नान जो है वो 30 रुपये का जो बिक रहा है। अगर मेरे पीछे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बाकायदा तौर पर जो है वो इस हवाले से एक रेट लिस्ट भी लगाई गई है नान और रोटी के हवाले से। इस कीमत पे नान मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि वो तमाम जो तंदूर पर जो इतने की रोटी मिल रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मुझे बात सर क्या कि हुकूमत ने 15 की रोटी करवा दी है, ऐलान करके छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी वो चीज़ महंगी मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल महंगी मिल रही है, बहुत महंगी मिल रही है। इसलिए आटे का रेट भी घट गया, लेकिन इन्हों का रेट नहीं घटे। चाहे कि 20 रुपये का रोटी 15 रुपये की होनी चाहिए, यह मसला है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलान करके छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे हुकूमत को? नहीं, वो कहते आटा सानू मिलता पाया, उन्हें 200 रुपये 300 रुपये थैले पीछे घटाया उन्होंने, जो मसला है तो इन्होंने बोले वही रेट है बिल्कुल, इन्होंने नहीं घटाया कुछ। हुकूमत कह रही है कि हमने खुद करवाया, क्रैकडाउन कर रही है। क्रैकडाउन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा। सर आप बताइएगा क्या वजह है इतने की नान और रोटी जो है वो आप दे रहे हैं, जबकि हुकूमत ने जो कहा है नान 20 का देना है, आप फिर 25 और 30 पे? सादा रोटी जो है वो 15 रुपए की है, जो नान है ये सादा 25 का, और तिलों वाला जो है 30 का है। हुकूमत ने 20 का किया। 20 का तो नहीं है, 25 का है। हुकूमत कहती है 20 का नान बेचना है, 15 की रोटी। पहले 16 रुपए की रोटी थी, उसके बाद 15 का नान किया गया। क्या वजह है? आपको आटा भी सस्ता किया गया? आटा सस्ता की है ना, फ़ैन की बोरी तो उतने की है, 10,000 रुपये की मिल रही है। 12,000 रुपये का यह सिलेंडर मिल रहा है। ये लेबर जो 7 बंदे काम करते हैं, 7 दिन के और 7 रात के, 19,000 रुपये इनका होता है। ये तिलों का तोड़ा जो 21,600 रुपये का, ये तो नहीं ना कम किया, सिर्फ एक आटा ही कम किया है। हाँ जी बिल्कुल, तंदूर मालकान भी जो हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं, उनका कह रहे हैं हुकूमत की जानिब से ना तो गैस दी जाती है और जिसके बदले में हमें जो है वो सिलेंडर जलाना पड़ता है, लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, और ना ही हुकूमत की जानिब से ना आटे की बोरी, मैदे की बोरी जो है वो सस्ती की गई है, और ना ही जो गैस की कीमतें हैं वो कम की गई, ना ही जो सुई गैस है हुकूमत की जानिब से वो प्रोवाइड की जा रही है। इस हवाले से तंदूर मालकान भी जो हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मैदे का रेट कम करेगी और जो LPG की कीमतें उनको कम करेगी, तो वो भी जो है वो नान की जो कीमतें हैं वो भी कम कर देंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा इंतज़ामी का गिरफ्त फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटे के दौरान 2234 मुकामात की चेकिंग की गई है। 175 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, जबकि 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। गिरफ्त फरोशों को 5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, गिरफ्त फरोशों के खिलाफ जो है जिले इंतजामिया क्रैकडाउन कर रही है। 16 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, 2234 मकामात पर इंस्पेक्शन की गई है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि इस वक्त 175 खिलाफ वर्जियों पाई गई, जिसमें 5 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में खुद कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातमा ने जलमोल दरोगावाला स्टोर पर अशिया की फराहमी और कीमतों का जायजा लिया। इसी तरह AC शालीमार ने रेट से सवेरा न होने पर एक को वार्निंग, जबकि 2 स्टोर मालिकों को भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने DHA फेज 5 में अचानक छापे मारे और असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 स्टोरों को 60,000 रुपये के जुर्माने आयद किए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मसनूई महंगाई करने वालों को किसी सूरत राइस नहीं होगी। इसी सिलसिले में आवाम से गुजारिश है कि शिकायत की सूरत में 0800-2345 पर या कीमत ऐप पर शिकायत दर्ज करवाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान।